and welcome to the Smart Money Seminar 2017 organized by PIFA, that is Pune Independent Financial Advisors Association. My name is Harshavardhan Bhusari. I am Secretary of PIFA and will be your host for the evening. Thank you for taking time out of your busy schedule and attending this seminar. It's amazing to see you all here, that also in full capacity of the auditorium. We are experimenting with live streaming of the event today as well, and I cordially welcome all our friends who are watching this live in different parts of the country and abroad as well. Thank you for your inquisitiveness and interest in learning more about managing money smartly. दोन पंक्त्या आहेत हितोपदेश सुहृद भेदमधून. जलबिंदू निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च. The meaning of this is, a pot gets filled by water, falling into it one drop at a time. It may take a lot of time, but it does not get filled. Such is the story of accumulation of knowledge via education, good karma by doing noble deeds, and wealth as well. All of these are very, very slow processes. Now, what is the relevance of this to this investor awareness seminar? In current times, where there is an overload of information, the basic awareness of things has increased manifold in metros. We all are seemingly more informed. Everyone seems to know everything. Everything is so instant. However, the half knowledge derived from this information is quite dangerous. It triggers a false belief in a person that he is an expert about a certain thing. But when it comes to managing his own money, if a person applies this half a knowledge, then he actually burns his fingers. It is a matter of introspection that when everybody seeks a domain expert in all walks of life, that is like a doctor or a lawyer, why this transitory option for managing own money? It is because of this reason that such investor awareness seminars are an essential need for the society. We hope to create informed investors through this who can take prudent decisions for their hard-earned money. Smart investors will in turn make their money work and in turn will also earn smart money. Well, to begin with, I request you to please put your mobiles on silent mode and put it on flight mode if possible. We are on board a journey for managing money smartly. And I am also informed that for the sake of hassle-free transmission to our friends who are watching this live program by live streaming, this is a need. This year, the core committee of PIFA, that is Pune Independent Financial Advisors Association, with support from our sponsors, has planned to arrange a series of smart money seminars in different parts of the city over the next few months. I request you to please mark your calendars and be present at all the events. We had an event a month ago at Sahakar Nagar. Just for you, for your information, the schedule of events for further events is on 11th of March, we are having another event at Karnataka High School, Erandwane, where Mr. Kishan Sharma from HDFC Mutual Fund and Mr. Ashish Pimple from Axis Mutual Fund will be addressing us. And on 12th April 2017, we are having an investor awareness seminar at Bal Gandharva, wherein Mr. Ramdev Agarwal from Motilal Oswal and Mr. Sunil Subramaniam from Sundaram Mutual Fund will be addressing us. It is PIFA's endeavor to bring to you the best of speakers and to help you make smart decisions regarding your money matters. With your support, we hope to make the Smart Money Seminar a regular feature in the events calendar of the city of Pune, because as they say, our city deserves nothing but the best. Pune tithe काय होणे आपण म्हणतोच नाही का? Just to inform you about the event flow for today evening, we will begin with a short speech by PIFA past president, Mr. Bhushan Mahajan. Our first speaker for the evening will be Mr. Ashutosh Bishnoi and followed by Mr. Hitesh Mali. If the time permits, we will also have a question-answer session with the speakers post both the speeches. I am sure that all of you will be getting some huge value addition by attending this seminar. To begin with, I request PIFA President Mr. Ajay Ladda and Vice President Mr. Rajendra Satalkar to please lead our speakers for the evening, Mr. Ashutosh Bishnoi and Mr. Hitesh Mali,
to the dais for lighting the lamp and felicitation. May I request PIFA President Mr. Ajay Ladda and Vice President Mr. Rajendra Satalkar to felicitate Mr. Ashutosh Bishnoi, who is the CEO of Mahindra Mutual Fund. May I now request PIFA President Mr. Ajay Ladda and Vice President Mr. Rajendra Satalkar to felicitate Mr. Hitesh Mali. I request the dignitaries to please take their seat in the auditorium. I would now invite past President of Pune Independent Financial Advisors Association, Mr. Bhushan Mahajan, to tell us about our association, its objectives, and the topics of today. Please welcome Mr. Bhushan Mahajan. Thank you, Harshvardhan. आमचे अध्यक्ष अजय लड्डा सर, महिंद्रा म्युच्युअल फंडचे MD, CEO आणि सर्वेसर्वा श्री आशुतोष बिश्नोई सर, आणि आम्ही ज्यांना इक्विटीचे ब्रँड ॲम्बॅसेडर म्हणतो ते आमचे मित्र व्हाईस प्रेसिडेंट हितेशजी माळी, हितेशभाई, उपस्थित मान्यवर आणि आजच्या सुट्टीच्या दिवशी इथे उपस्थित राहून आमचा उत्साह वाढवणारे पुण्याचे सुज्ञ गुंतवणूकदार बंधू भगिनींनो, खरं तर पुण्यात कुठलाही कार्यक्रम करायचा तर फार भान ठेवावं लागतं. परवाच आपल्या देवेंद्रजींना त्याचा हिसका बसला. सदाशिव पेठेत दुपारी 1 ते 4 ही काय सभा घ्यायची वेळ नाही. बरं, नुसती वेळ बघायला लागते असं नाही, वक्ताही जरा तोला मोलाचाच लागतो. बरं, नुसती वक्ता आणि वेळ असंही नाही, कार्यक्रम निःशुल्क जरी ठेवला तरी हे ऐकायची तयारी लागते की तुम्हाला वेळ फुकटचा असेल, आमचा असेलच असं नाही, आमचा वेळ महत्त्वाचा आहे. आणि ही सगळी तयारी ठेवून जेव्हा आम्ही धडधडीच्या छातीने आज हा कार्यक्रम करायचं ठरवलं आणि आपण बहुसंख्येने इथे आलात, सभागृह भरलेलं आहे, आम्हाला खरोखर छान वाटतं आहे. आपल्या सर्वांचं मी पिफाचा भूतपूर्व अध्यक्ष भूषण महाजन सहर्ष स्वागत करतो. आणि आपला वेळ वाया जाणार नाही याचा आजच्या निवडणुकीच्या भाषेत वचननामा, जाहीरनामा किंवा शब्द देतो. आपला वेळ नक्कीच कारणी लागेल, कारण अत्यंत दिग्गज असे वक्ते आपण इथे बोलवलेले आहेत. मित्र, शेअर बाजाराचं आकर्षण सर्वांनाच आहे. आकर्षण आहे पण आपुलकी नाही, कुतूहल आहे पण मैत्री नाही, भीती आहे पण खात्री नाही, ओढ आहे पण भरोसा नाही. शेअर बाजार म्हणजे सट्टा बाजार असंच सगळ्यांना वाटतं. आमचं म्हणणं असं, सटोडियांसाठी सट्टा बाजार असेलही, पण गुंतवणूकदारासाठी तो समृद्धीचा राजमार्ग आहे हे नक्की. शेअर बाजारात चटकन पैसे मिळून पटकन दूर जाण्याचा मार्ग आहे असं बरेच जणांना वाटतं. आणि त्यामुळेच बाजारात शिरल्यानंतर कधी बाहेर जातो असं सगळ्यांना वाटत राहतं. दुसरं, अशी एक समजूत आहे, या अनेक मिथ्या गोष्टी पूर्ण करायला लागतील, आपल्याला दूर करायला लागतील, की म्युच्युअल फंड्स हे फक्त शेअर बाजारातच पैसे गुंतवतात. मित्र, हे खरं नाही आहे. शेअर बाजाराच्या तिप्पट पैसे म्युच्युअल फंड्स कर्जरोखे, सरकारी आणि खाजगी यामध्ये गुंतवत असतात. आणि अत्यंत निर्विघ्न आणि सोयीचा असा तो निश्चित उत्पन्न देण्याचा मार्ग आहे. भांडवल बाजारातलं यश हे पाऱ्यासारखं हातातून निसटून जाईल असं बहुतेकांना वाटतं. आणि तसं निसटू द्यायचं नसेल तर म्युच्युअल फंड ॲडवायझर किंवा सल्लागार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरं तर वेळच्या वेळी योग्य ॲसेट अलोकेशन केल्याशिवाय हे यश निसटणार नाही याची काळजी घेता येत नाही.
दीर्घकालीन समृद्धी जर हवी असेल तर एक त्याला शिस्तबद्ध योजना लागते. आपलं बोट धरून आत येणारा ॲलिस इन वंडरलँडसारखा जो गुंतवणूकदार आहे, त्याची जोखीम घेण्याची काय तयारी आहे, त्याचं रिस्क प्रोफाईल काय आहे, तर रिस्क टॉलरन्स काय आहे, त्याचं वय किती आहे, त्याचं उत्पन्न काय आहे, आत्तापर्यंत त्यांनी काय वाचवलेले आहेत पैसे, या सगळ्यांचा विचार करून त्याची स्वप्न काय आहेत ते बघून ती पूर्ण करण्याचा एक प्रयत्न आर्थिक भक्कम आधाराने हा सल्लागार करत असतो. फिफाचा आमचा प्रत्येक सभासद त्यामुळे त्याच्या गुंतवणूकदाराच्या कुटुंबाचा एक घटक होऊन जातो, हे नक्की. फिफा पुणे इंडिपेंडंट फायनान्शियल ॲडवायझर्स असोसिएशन आमच्या सभासदांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सर्वकष, निरपेक्ष, विश्वसनीय आणि नीतिमान सल्ला देण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. इथिकल, ट्रान्सपरंट, होलिस्टिक ॲडवायझिंग. आपल्या सभासदांना अधिक कार्यक्षम करणे, त्यांच्या ज्ञानकक्षा रुंदावणे, त्याचबरोबर सतत गुंतवणूकदार जागर यासारखे कार्यक्रम करणे, याच उद्दिष्टांसाठी फिफाची स्थापना झालेली आहे आणि हे आम्ही गेले 5 वर्ष सतत करत आहोत. या अभियानाअंतर्गत म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजार यांची पारदर्शक माहिती निवेशकांना देणं, हे काम आम्ही सतत करत आहोत. या मालिकेतील एक पुष्प आज गुंफले जात आहे. मित्रांनो, निवडणुकीचा मौसम आहे, त्यामुळे निवडणुकीची काही उदाहरणं मनात येतात. नुकतेच निकाल लागलेले आहेत. पुण्यात सर्वदूर कमळ फुललेलं आहे. मतदान किंवा शेअर आणि म्युच्युअल फंडची निवड प्रक्रिया सारखीच आहे. आपण मतदान करण्यापूर्वी उमेदवाराच्या पक्षाने हातात सत्ता आल्यानंतर त्याचा काय सदुपयोग किंवा दुरुपयोग केला हे बघतो. पुढे त्यांची वाटचाल काय आहे ते बघतो. त्यानंतर उमेदवाराचं चारित्र्य काय आहे, किती निस्पृह आहे, त्यांनी काय काम केलं आहे, तो ॲप्रोचेबल आहे का, या सगळ्या गोष्टी बघतो. आणि त्यानंतर निवडणुकीचा ज्वर पुरेसा भरला की एक नवीनच लाट येते आणि त्या लाटेत आपण कधी स्वार होतो आपल्याला कळत नाही, आपण जाऊन मतदान करून येतो. आमच्या शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडचं निवडीचंही हेच सूत्र आहे. ज्या उद्योग समूहाचे कामकाज, धोरण, रिटेल गुंतवणूकदार, छोट्या गुंतवणूकदाराबद्दल असलेली आस्था किंवा अनास्था, या सर्वांचा विचार करून आपण त्या उद्योग समूहाकडे जायचं की नाही हे ठरवतो. त्यानंतर तो फंड, त्याची स्कीम आणि त्यानंतर शेअर बाजारात नेहमीच येणाऱ्या तेजी मंदीच्या लाटेमध्ये आपण कधी आरूढ होतो आणि कधी आपण निर्णय घेतो आपल्याला कळत नाही ना, आपलं मतदान होतं. मित्र, त्यामुळेच आजच्या सभेसाठी आम्ही खास वेगळे असे 2 विषय निवडलेले आहेत. इमोशन्स इन इन्व्हेस्टिंग. आपण जी काही खरेदी करतो ती कपड्याची असो, वस्तूची असो, सोन्याची असो किंवा शेअर्सची असो, त्याच्यामध्ये आपल्या भावभावनांचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. आता गंमत तर अशी आहे की आपण इतर जी काही खरेदी करतो त्याचा कधी विक्रीचा विचार करत नाही, म्हणजे आपण उपयोग करतो. म्हणजे आता उदाहरणार्थ जिममध्ये जायचा कंटाळा आला म्हणून घरात जर आपण सायकल घेतली आणि आपण ती सायकल चालवली नाही तर आपण कपडे वाळत घालण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो. किंवा सोनं आपण घेत राहतो. आपल्याला असं शिकवलं आहे की लहानपणापासून सोन्यामध्ये सतत आयुष्यभराची SIP करायची. सोनं घ्यायचं पण विकायचं नाही. जन्मल्यापासून प्रत्येक मुहूर्ताला, गुरुपुष्य असो, दिवाळी असो, दसरा असो, थोडं थोडं सोनं घ्यायचं आणि यातनं संपत्ती निर्माण होते अशी आपल्याला शिकवणूकच आहे. आणि आपण पाहतो, आपण प्रत्येकजण सोनं कोणी विकत नाही. अत्यंत कठीण परिस्थिती आल्याशिवाय सोनं विकत नाही. कपड्यांची तर काही प्रश्नच नाही. कपडे जास्तीत जास्त बोहाणीला देऊन काही भांडीकुंडी घेता येतात, याच्या पलीकडे काही नाही. पण विचार आमच्या शेअर्सचं किंवा म्युच्युअल फंडांचं एवढं भाग्य नाही. याची खरेदी तर होते, परंतु विक्री केवळ भावनेच्या आहारी जाऊनच होते. किंबहुना नको त्या ठिकाणी, नको त्या भावाला एखादा शेअर विकला किंवा म्युच्युअल फंडातून बाहेर पडलो आणि आता कसं हुश्य वाटतंय, असे वाटणारे गुंतवणूकदार अनेक. या ज्या सगळ्या भावना आहेत, या भावनांना आपण कसं काबूत ठेवावं? खरं तर मित्र, असं म्हणतात की फिअर आणि ग्रीड, दीज आर द 2 बेसिक इमोशन्स विच कंट्रोल इन्व्हेस्टर बिहेवियर. कॉमन सेन्स आपल्याला असं सांगतो की ते मंदीत ते शेअर घेतले पाहिजेत आणि तेजीत विकले पाहिजेत. पण आपण किती लोक असं करू शकतो? आता नुकतीच नोटाबंदीमुळे एक मंदी आली होती बाजारात. किती लोकांनी भरघोस पैसे त्यात गुंतवले? कदाचित बोटावर मोजण्या इतके. एकच छोटीशी गोष्ट सांगतो.
2-3 वर्षापूर्वी मारुतीच्या कारखान्यात, आता मारुती आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, कारच्या बाजारामध्ये जवळपास 50% हिस्सा आहे त्यांचा, संप झाला. संपाला पाहता पाहता वेगळं वळण लागलं, हातापायावरती गोष्ट आली, लोकांचा संताप अनावर झाला. कामगारांनी त्या संतापामध्ये एका HR अधिकाऱ्याचा खून केला. खून झाल्याबरोबर कंपनीने टाळेबंदी केली, कंपनी बंद पडली. अगदी 2.5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. आणि आपल्या सगळ्या बिझनेस चॅनल्सवरती प्रचंड मोठ्याने चर्चा चालू झाली की आता काय होईल कंपनीचं, सुझुकी सगळा हिस्सा परत घेईल का, यांचा प्लॅन कुठे हलवतील का, कंपनीचा आता सेल कमी झाले तर त्याचा काय परिणाम होईल, वगैरे वगैरे वगैरे. मित्र, त्यावेळी मारुतीचा शेअर हा 900 रुपयापर्यंत खाली आला होता. पुढे जेमतेम 3 महिन्यात हे वातावरण निवळलं, विसरूनही गेलं, कारण चर्चा 1 दिवसापुरती असते. मारुती हा आयुष्यभराचा साथीदार आहे तुमचा आमचा. आज त्या शेअरचा भाव 6000 रुपये आहे. आता त्यावेळेस या सर्व नॉईजकडे दुर्लक्ष करून जर कोणी गुंतवणूक केली असती मारुतीमध्ये, इतर सगळे लोक घाबरवत असताना, तर कदाचित तो आज 6 पट आपल्या पैशाचा मोबदला त्याला मिळाला असता. ज्यांनी गुंतवले त्याला मिळाले. या बाबतीत फक्त 1-2 ओळी ऐकवतो. जब कभी हादसा होता है हम देखने जाते हैं, जब कभी हादसा होता है हम देखने जाते हैं कि अब दीदार के काबिल यहाँ रखा क्या है. जेव्हा एखादी दुर्घटना होते किंवा एखादी घटना घडते तेव्हा आपलं बघावं तिथे काही आहे का, काही मौल्यवान आहे का. कुछ समय खाक में भी बिताया, कुछ समय खाक में भी बिताया करो जनाब. जरा त्या राखेतही बघा, कुछ समय खाक में भी बिताया करो जनाब, नामचीन मोती ढूंढो तो यही मिलते हैं. चांगल्या गोष्टी तिथेच मिळतात. जेव्हा एखादं सेंटिमेंट वाईट असतं, जेव्हा शेअर बाजाराकडे लोकांचं दुर्लक्ष असतं, त्याच वेळेस मोठी गुंतवणूक करण्याची वेळ आलेली असते. असो, आपल्या भावभावांना आवरण घालत गुंतवणूक कशी राखायची, वेल्थ क्रिएशन आणि वेल्थ प्रोटेक्शन याचा परामर्श घेणार आहेत आपले पाहुणे श्री आशुतोष बिश्नोई सर. आणि त्यानंतर दुसरं सत्र आहे जो आपला रोजचाच प्रश्न आहे. घरबांधणी क्षेत्रात मंदी, रिअल इस्टेटला मंदी आहे, बँकांचे व्याजदर घसरत आहेत, सोन्यात काही चमक राहिलेली नाही, मग मी माझे पैसे कुठे ठेवू. टाईम टू लुक ॲट पेपर ॲसेट्स बियॉन्ड फिजिकल ॲसेट्स हा विषय घेऊन आपल्यासमोर येणार आहेत हितेशभाई माळी. बंधू भगिनींनो, आपला अभिप्राय व आपल्याला हवे असलेले विषय की जे आम्ही घ्यावे पुढील कार्यक्रमामध्ये हे आम्हाला जरूर कळवा. आम्ही ते नक्की पुढील येणाऱ्या कार्यक्रमात कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. आपल्या सर्वांना 2017 हे वर्ष तेजीचं आणि समृद्धीचं जावं एवढी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि पुढील कार्यक्रमाला चालना देतो. धन्यवाद. Thank you, Bhushan sir. I would now like to invite PIFA founder president, Mr. Sandeep Bhushetty, to introduce our first speaker for the evening, Mr. Ashutosh Bishnoi. Sandeep ji. Good evening, friends. Mr. Ashutosh Bishnoi is the first speaker for today's session. Mr. Ashutosh Bishnoi has over 34 years experience in the consumer marketing and financial services in India. Currently, he is a MD and CEO as well as a Chief Investment Officer of Mahindra Mutual Fund. The senior role held by him in the mutual fund industry, including Chief Marketing Officer in DSP Merrill Lynch Mutual Fund, President and CEO of JM Mutual Fund, Head of the Marketing of Kotak Life Insurance, Executive Director of UTI Mutual Fund, and CEO of L&T Mutual Fund. So he has a great experience in mutual fund industry. When he was in consumer businesses, Mr. Bishnoi was head of the strategic board planning of JWT India and a later publisher of Reader Digest, the well-known book in India. Mr. Bishnoi is a MBA graduate from Symbiosis College of Pune. So बिश्नोई सर ने पूना में काफ़ी समय बिताया है और पूना उनके काफ़ी दिल के करीब है. So welcome Mr. Ashutosh Bishnoi on behalf of PIFA and on behalf of all Punekar. Thank you.
I would now like to request Ashutosh Bishnoi ji to enlighten us with his thoughts. Please, Mr. नमस्कार दोस्तों, पीफा और पीफा की जो मैनेजिंग कमेटी है उसको मैं उसके आप सबका और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया कि यहाँ खड़े रहकर आपसे बात करूँ। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से बात करने का वक्त मिले, ताकि क्या होता है कि कभी कभी जब कंपनी में काम करते रहते हैं अपने रूम में बैठे बैठे हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं तो समझ में आता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं। पर एज यू बिकम मोर सीनियर पीपल कीप यू अवे फ्रॉम दैट। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ही आके यहाँ पे लोगों से मिलूँ, तो फाइनली आई एम बिफोर यू, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक बात जो मेरे इंट्रोडक्शन में नहीं कही गई, सही कहा कि पुण्य नगरी मेरे दिल के बहुत करीब है। कितना करीब है ये आप बता नहीं पाए, ये मेरी ससुराल भी है। So my wife and I met at Symbiosis Institute way back in 1981 when I joined as a young lad, and in 1983 when I graduated, this was my second home and continues to be my second home. So इससे एक खास नाता है। और ये जो कॉलेज जहाँ मैं आज खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर हुआ करता था। शुरू करेंगे। जितना अब मैं बात करूँगा ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर का नज़रिया कम है, एक एक्सपीरियंस ज़्यादा है एक आदमी का जिसने 34 वर्ष बिताए हैं। कुछ मार्केट्स में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बेची हैं, कुछ आइसक्रीम बेची है, कुछ रीडर्स डाइजेस्ट का पब्लिकेशन मैगज़ीन भी बेची है, और उसके बाद तमाम सालों से म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड क्या क्या नहीं बेचा है, मार्केट में मैनेज भी किया है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा ही समझ के चलिएगा। किताबों में ये शायद मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा भी। और माफ़ कीजिएगा अगर मैं अनजाने में इफ़ आई ऑफेंड समबडी, मुझे आदत नहीं है कि मैं किताबों से सामान निकाल के बात करूं लोगों से। सबसे पहली बात यह है कि इमोशनलिटी इन इन्वेस्टिंग क्या होता है, कि इन्वेस्टमेंट करने के वक्त इमोशनल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले निवेश में भावावेश, जब हम पैसा निवेश करने जाते हैं, कहीं डालते हैं उनसे, तो किसी आवेश में आके करते हैं, किसी भावना से आके करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन है? बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। आपको मालूम है कि सारे एनिमल किंगडम में ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली एनिमल्स जो कि विवेक रहित, इरैशनल डिसीजन के केपेबल हैं। आप किसी भी जानवर के सामने खाना डाल दीजिए, भूखा नहीं होगा तो चला जाएगा। शेर और हिरण एक ही फील्ड में घूमते रहते हैं जब तक शेर को भूख नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है। शेर को कहीं से आवाज़ आती हो तो दुबक के बैठ जाता है, घास में आप देख भी नहीं सकते कि है। तो दे ऑल एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम लिव देयर लाइफ विद रैशनल थिंकिंग। भूख लगी है तो खाना खाओ, प्यास लगी है तो पानी पियो, डर लगे तो छुप जाओ, ठंड लगे तो गुफा में घुस जाओ। एक आदमी, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग आर द ओनली पीपल जो इतने सारे वेरिएशन ऑफ भावना, ऑफ इमोशन, इरैशनैलिटी जिसे कहते हैं, ये हम दिस इज़ यूनिक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। इस बात को ज़रा सोचिए और ज़रा गहराई से सोचते हैं इसके बारे में। ये हमारा उत्तराधिकार है, इसकी वजह से भी हम सफल हुए हैं। लेकिन ये कैसे चलता है? ज़िंदगी का प्रत्येक महत्वपूर्ण फैसला हम लोग भावुकता में आके ही करते हैं। भले वो क्या एजुकेशन करनी है, वो कहाँ करियर क्या बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, शादी कैसे करनी है, कहाँ करनी है। आजकल तो कहाँ करनी है बहुत बड़ी बात होती है, कहीं बाहर जाके ही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। बच्चे होने हैं, नहीं होने हैं, कितने होने हैं, कहाँ होने हैं, आज तक ये होने लगा है। होम मेकिंग, कौन सा घर चाहिए, कहाँ चाहिए, किस इलाके में, किस शहर में। माइग्रेशन, जो कि हमारे परिवेश में, हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है कि लोग एक जगह नहीं रहते हैं आजकल। एक ज़माना था आप किसी से एड्रेस ले लीजिए और उसको 40 साल बाद भी उसे आप चिट्ठी भेजेंगे तो पहुंच जाती थी। अब आप 4 साल के बाद भेजेंगे तो वापस आ जाएगी, रिटर्न, डिलीवर्ड एंड रिटर्न। वो ये सब जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं ना, वो इरैशनल हैं। इरैशनल क्यों है? क्योंकि ये भावना के साथ, इसके साथ एक भावना जुड़ी है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। फंक्शनैलिटी इसमें बाद में आती है, लेकिन पहले ये सोच लेते हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चों को
यूनाइटेड स्टेट्स ही भेजना है। आजकल के परिवेश में शायद यूनाइटेड स्टेट्स की चॉइस थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन कहीं बाहर भेजना है। मैं नहीं जा पाया, लेकिन क्या हुआ, मेरी लड़की मेरा लड़का कहीं बाहर जाके पढ़ेगा, वो अच्छा नाम कमाएगा, अपना अच्छी एजुकेशन करेगा, वो ये सब भावनाएं हैं। और हम सारे बड़े अपने जितने ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले भावनात्मक तरीके से ही करते हैं। कुछ छोटे छोटे डिसीजंस भी हम भावना के साथ ही करते हैं। आई डोंट वांट टू बाय अ शू, आई वांट टू बाय अ नाइकी शू। अब वो नाइकी जूते की जो कीमत होती है वो 5,000 रुपये होती है, उसमें जितना मटेरियल लगा होता है वो 50 रुपये का नहीं होता है। लेकिन हम रैशनली सोचेंगे तो हम सोचेंगे इसका 5,000 क्यों दूँ, लेकिन नाइकी नाम के साथ एक भावना जुड़ी है जो हम उसको देख रहे हैं, इसलिए उसके लिए 5,000 या 6,000 या 10,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाते हैं। या फिर हमें जो गाड़ी लेनी है वो स्कॉर्पियो तो होनी चाहिए ना, ऐसे एकदम छोटी सी गाड़ी कैसे चलेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बड़ी गाड़ी में बैठूंगा, स्कॉर्पियो चलाऊंगा, एसयूवी चलाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। मैं मर्सिडीज़ में जाऊंगा, तो एक भावना जोड़ लेते हैं हम लोग अपने छोटे डिसीजंस के साथ भी। या फिर उससे भी छोटा, वो बाहर जाके सैंडविच खाने से, अरे मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाएंगे ना, सैंडविच ही है, लेकिन उसे बर्गर कहने में कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने कोई एक अचीवमेंट है उसमें। ये सब इरैशनल डिसीजंस होते हैं। मैं नेगेटिव ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि एज ह्यूमन बींग्स वी आर इमोशनल। मोस्ट ऑफ आवर लाइफ डिसीजंस आर मेड ऑन इमोशनल बेसिस ओनली। आप अपने बारे में सोचिए, जब जब आपने ये कोशिश की और आपने अपने बच्चों के साथ कोशिश की होगी कि भैया रैशनली सोचो, तुम क्या पिज़्ज़ा हट में जाके पिज़्ज़ा खाओगे, वो 2,000 रुपये की पिज़्ज़ा घर में बना लो। नहीं नहीं, पिज़्ज़ा हट में जाना जरूरी है ना। तो यू स्टार्ट गेटिंग रैशनल विद अदर पीपल, बट वेन योर ओन डिसीजंस कम, irrationality continues. It is easy to be rational about other people, पर अपने बारे में बहुत मुश्किल है। तो भारतीय शास्त्रों में इस irrationality को बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया गया है। नवरस का नाम सुना होगा आपने। 9 तरह की भावनाएं होती हैं, ब्यूटी, लव, ग्रीड, लाफ्टर, जॉय, सॉरो, एंगर, करेज, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज एंड पीस। ये भारतीय शास्त्रों में बहुत पहले से शास्त्रियों ने लिख दिया था कि भाई मनुष्य की 9 तरह की भावनाएं होती हैं। अब 9 की वो 20 बना लेते हैं लोग, लेकिन बेसिक 9 ही हैं। और ये 9 भावनाएं हैं, और इसी की वजह से, इन्हीं भावनाओं की वजह से हम जो हैं वो हैं। बचपन से, अभी मेरे दोस्त ने कहा गोल्ड के बारे में हमको बचपन से बताया जाता है। बचपन से हम इमोशनल वर्ड्स सुन सुन के बड़े होते हैं, बिल्कुल छोटे बचपन से। बच्चे तू बड़ा होके क्या करेगा, तू पढ़ेगा, तू आगे बढ़ेगा, यू विल लव, लोगों से प्यार करो, लव योर नेबर्स, बी काइंड टू द अनफॉर्चुनेट, फॉरगिव दोज हु डू यू इल। ये सब हमको सिखाया जाता है अलग अलग ढंग से। हमारे माँ बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारा जो समाज है, यहाँ तक कि हमारे रिलीजन्स, सारे के सारे रिलीजन्स यही सिखाते हैं। यही वर्ड्स हमारी तरफ आते जाते हैं। कंटिन्यूसली वी आर लिविंग, रीडिंग, स्पीकिंग वर्ड्स विच आर इमोशनल वर्ड्स। एम्बिशन है, गोल्स, बचपन से हम बच्चों को कहते हैं नंबर 1 रहना, नंबर 2 की कोई जगह ही नहीं है लाइफ में। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी। बट दीज आर वर्ड्स दैट शेप अवर लाइफ। वाई डू वर्ड्स शेप अवर लाइफ? बिकॉज वर्ड्स लीड टू थॉट्स। शब्द से सोच शुरू होती है, सोच से कार्य, कार्य आगे बन के आदत हो जाती है, एंड आदत एक धारणा, और उससे आपका व्यक्तित्व बनता है। सो बी केयरफुल वॉट वर्ड्स यू चूज टू रिलेट टू, वॉट वर्ड्स यू चूज टू थिंक। उसी भावना में आपका व्यक्तित्व बिल्कुल आगे जाके बन जाएगा। यहाँ तक कि बाय द टाइम यू आर 25, अनजाने में ही आपका व्यक्तित्व, जो आपकी पर्सनालिटी जो है डेवलप हो जाती है, बिकॉज ऑफ वॉट वर्ड्स यू डिसाइडेड टू एसोसिएट विद। आपने अपनी धारणा, अपनी पर्सनालिटी कैसी डेवलप करनी चाहिए होगी, लेकिन वो आपके कंट्रोल में जब है व्हेन यू बिकम क्लियर दैट व्हाट वर्ड्स यू वांट टू लिव विद। रिस्क अवर्स हैं आप, क्योंकि बचपन से ही ये शब्द सुनते आए हैं कि अरे मुसीबत से दूर रहना, वो कोने में मत जाना, वहाँ से गिर जाओगे, अरे वो ठंड हो जाएगी बाहर जाओगे तो, देन यू बिकम रिस्क अवर्स। सो प्लीज़ थिंक अ लिटिल मोर डीपली अबाउट दिस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसका इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है। एक और इरैशनलिटी जो यूनिकली ह्यूमन है,
Human beings are the only animals who can imagine that does not exist. हम हर वो चीज़ इमेजिन कर लेते हैं जो दुनिया में है ही नहीं या हो भी नहीं सकती है. दिस इज अगेन यूनिकली ह्यूमन. देर इज नो अदर एनिमल इन द एनिमल किंगडम. शेर को ये सपना नहीं आता है कि कल एक रॉकेट आएगा. ये सपना किसी आदमी को ही आया था. किसी हाथी को ये सपना नहीं आता है कि एक राइफल आएगी. ये सपना भी किसी आदमी ने ही देखा था और उसने राइफल बनाई थी. आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, अगर 100 साल पहले किसी आदमी से बोला होता कि मालूम है 100 साल के बाद ये आदमी ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, वो बोलेगा ये तो इडियट है, उसको पागल खाने में बंद करो. क्योंकि इमेजिनेशन इज़ द गिफ्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये हम सबके पास है और यही रीज़न है. दिस इज़ द यूनिकनेस फॉर आवर सक्सेस. ये हमारी सफलता की कुंजी है कि वी कैन इमेजिन थिंग्स ऑफ द फ्यूचर विच पीपल हैव नॉट इवन थॉट अबाउट. तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी खड़ा है. देखो 5 चीज़ें तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं जब 5 साल का था, ये 5 चीज़ें मैंने इमेजिन नहीं की थी. मैं 5 साल का बहुत पहले था, लेकिन फिर भी आई वॉज इन 1966, आई वॉज 5 years old. तब ये कोई भी चीज़ नहीं थी. इसके बारे में कुछ बात भी नहीं होती थी, कोई सोचता भी नहीं था. लेकिन ये अब चीज़ें, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. सो समबडी इमेजिन्ड. तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा खड़ा ये आपको क्यों भाषण दे रहा हूँ कि इरैशनैलिटी एंड इमोशन, इसका इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक़ है इसका. 1 मिनट ज़रा सोचिए इसके बारे में. नंबर 1, क्योंकि हम इमोशनल हैं, हम वो वर्ड सिलेक्ट करते हैं जो हम जिसके साथ हम ग्रो होते हैं. हमारे इन्वेस्टमेंट चॉइस में भी वही पर्सनालिटी नज़र आने लगती है. अभी मेरे मित्र ने कहा इन्वेस्टमेंट इज़ अबाउट ग्रीड एंड फियर. आई वुड लाइक टू ऐड करेज. क्योंकि एक करेज भी चाहिए होता है कि हम पैसा रखने को तैयार हैं. उसमें एक हीरोइज्म होता है हमारे दिमाग में, अरे कल ये 3 दफ़ा हो जाएगा. ये करेज है. इट्स नॉट ओनली ग्रीड. क्योंकि आपने वो काफ़ी मेहनत करके पैसा कमाया है, इसलिए करेज लगती है उसके सामने रखने में कि उस शेयर में डाल दूंगा मैं. जैसे उन्होंने मारुति का एग्जाम्पल दिया, जब वो 900 रुपये में था और उस HR हेड को जब शूट कर दिया गया, तो जिस आदमी ने पैसा लगाया होगा उसमें बहुत हीरोइज्म रहा होगा. ये सिर्फ ग्रीड का सवाल नहीं है, उसमें करेज होगी. तो ये 3 चीज़ें लगती हैं. अगर आपके व्यक्तित्व में, आपकी इमोशनल मेकअप में करेज, ग्रीड और फियर नहीं है, तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में मुश्किल होगी. अगर आप डरपोक हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, फियरफुल हैं, तो आप यू ओनली हैव 1 क्वालिटी फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये आपका व्यक्तित्व कैसे डेवलप हुआ, व्हाट इरैशनल डिसीजंस यू मेक एंड यू आर यूज्ड टू मेकिंग will decide how you will invest. And number 2, all investment is about postponing consumption. सोचिए इसके बारे में. आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, आप उसे जाके उड़ाएंगे नहीं. आप आज जाके किसी 5 स्टार में खर्चा नहीं करेंगे, अपने लिए तुरंत गाड़ी नहीं खरीदेंगे. क्यों? उसमें से 25,000 रुपये आपको फ्यूचर के लिए रखना है. पोस्टपोन द कंजम्पशन. वाई? बिकॉज यू आर इमेजिनिंग अ फ्यूचर. आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल है. आपने सोच लिया है कि फ्यूचर में इस पैसे का मैं क्या कर सकता हूँ. फ्यूचर में ये पैसा दुगना हो जाएगा तो मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी. फ्यूचर में ये बढ़ जाएगा तो मैं कहाँ घर ले लूँगा. इसीलिए दिस डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द 2 इरैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स अफेक्ट डायरेक्टली हाउ यू इन्वेस्ट एंड वॉट यू इन्वेस्ट इन. तो क्या इमेजिन करते हैं हम लोग? अ बेटर टुमारो, अ सिक्योरिटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड अ लेगेसी टू लीव बिहाइंड. एवरीबडी इन दिस रूम वांट्स टू बी इमॉर्टल. कैसे? सब जानते हैं कि मर तो हम सभी जाएंगे, लेकिन क्या छोड़ जाएंगे जिसे देख के ज़माना कहेगा कि हाँ इस आदमी ने कुछ किया था. ये हम सब की भावना है. एंड दिस इज़ वाई इमेजिनिंग द फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिंग. सो दीज 2 इमोशनैलिटीज़ ऑलवेज थिंक अबाउट कि मेरा व्यक्तित्व क्या है और कैसा फ्यूचर में इमेजिन कर रहा हूँ. उसके बेसिस पे अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, इफ़ यू कैन डिसाइफर, यू कैन डिकोड कि मेरा क्या पर्सनालिटी है और मेरा इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर क्या है, इन्वेस्टमेंट का रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है कि कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है. ये अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन है. अपने आप में सोचना पड़ेगा आपको कि क्या पर्सनालिटी है, क्या एटीट्यूड है मेरा, क्या बिहेवियर है और मैं फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा हूँ. ऑल गोल्स
ऑल इन्वेस्टमेंट गोल्स आर इमोशनल गोल्स। यहाँ तक कि अगर जो कोई कहता है कि मुझे सिर्फ ज़्यादा पैसा बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल गोल। थिंक ऑफ द सैक्रिफाइस व्हेन यू आर सेटिंग दिस गोल, यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग टुडे। आज नहीं लेना है, आज ये खर्चा नहीं करना है, मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, लेकिन गोल क्या है उसके बारे में सोचना जरूरी है। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद दैट गोल। उस गोल के बारे में सोते जागते हर क्षण वो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट में गलती करेंगे, आप उसमें गलत समय में निकल जाएंगे, गलत समय में डालेंगे। उसमें कीप रिपीटिंग द वर्ड्स टू योरसेल्फ कि मैंने ये क्यों किया है। एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें एक लाइन याद है मुझे, इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की ज़रूरत की है। ये जो शिद्दत वर्ड है ना, ये एक झक्कीपना है। उस झक्कीपने से अपने गोल को सोचिए। जितनी इरेशनैलिटी आपकी लगती है, जितना इमोशन लगता है, सब लगा के उस गोल के बारे में सोचते रहिए, जिसके बारे में आपने फ्यूचर पूरा इमेजिन कर लिया है कि अगर मैं सेव करके इन्वेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो ये होगा फ्यूचर में। उसके बारे में हमेशा सोचते रहिए। उसे छोड़िए मत, उसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि वो आपका साथ छोड़ेगा नहीं। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 20 साल के बाद बावधन में एक बंगला खरीदना है, तो उसका साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो बार बार आपके दिमाग में आपके नॉक करते रहेगा, अरे क्या हुआ तुम्हारे बंगले का भाई, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, आप कहाँ हैं। उसका साथ छोड़ देंगे तो आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। सो स्टे विद योर गोल, बिकॉज लेसर पीपल देन यू हैव रीच देयर गोल्स। मैं यहाँ एक छोटी सी 2-3 फिल्में दिखाना चाहता हूँ। ये क्या फिल्में हैं, बहुत ज़माने पहले मैंने मेरिल लिंच नाम की एक कंपनी में काम किया था, तो ये थोड़ी पुरानी फिल्में हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बिकॉज द साउंड एंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ अमेरिकन, क्योंकि दिस आर अमेरिकन एड्स। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसमें, इन फिल्मों में, इन एड्स में इमोशन किस तरह से कैप्चर किया गया है। ये 30 साल पुरानी फिल्में हैं और 30 सालों में कोई फ़र्क नहीं आया है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब इन फिल्मों में नज़र आएगा। इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स फुल्ली, द विजुअल्स विल एक्सप्लेन रीजनेबली वेल। सिर्फ जो पहली वाली फिल्म है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट, दैट इज़ मोर लाइक अ कॉर्पोरेट एड फॉर मेरिल लिंच। आई कुड नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द रिमेनिंग, बट देयर आर 4 or 5 फॉलोइंग फिल्म्स। उसे ज़रा ध्यान से देखिए प्लीज़। कैन वी हैव द फिल्म्स? I'm lucky. I landed in the perfect place. My sister and I grew up here. My house, it holds all my memories. I had my practice here and raised my family here. But now there's so much I want to do, and I want to do it here. Things don't have to change. Ask a Merrill Lynch financial consultant who can help with the plan and more ways to make the plan work than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. Whoever said the heart has no place in business never had a child to pass it on to. I've got to set things up right to make sure he's the one who gets all this. What's a legacy anyway? Just another word for love. Make sure the future is secure for your business and your family with a plan from Merrill Lynch. Ask a financial consultant who has more ways to make the plan work than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. Were things any easier for him? Was providing for a family simpler back then? Now there's so much information. Decisions are tougher. Strange. I grew up not wanting to walk in his footsteps. Now I only wish I could. Things are more complex. Ask a Merrill Lynch financial consultant who can help with the plan and more ways to make the plan work than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. I thought I knew it all till you came. Now you cry and I don't know why. What are you thinking? Can you dream? So maybe I don't know it all. Like making the right decisions for your future. You're the helpless one, but I'm the one who needs a hand now. There is more at stake now. Ask a Merrill Lynch financial consultant who can help with a plan and more ways to make the plan work than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch.
There's nothing soft about the software business, especially when it's yours. Product cycles used to last years. Mine, more like minutes. The money side is a distraction. It's hard to focus on cash flow and 401k plans while your programs are crashing around you. Take control of your future. A plan from Merrill Lynch can show you how. And a Merrill Lynch financial consultant has more ways to make the plan work for you than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. Never had things exactly my way. My childhood, my parents planned that. Then came the kids and the house. Retirement? I'll call it freedom. To be that kid that still wants to play. But I have to make sure the money will last. Take control of your future. A plan from Merrill Lynch can show you how. And a Merrill Lynch financial consultant has more ways to make the plan work for you than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. I never wanted to grow up, much less get older. A daughter? Even the word used to scare me. Now I have commitments. That she will have an education. That my parents will always be okay. Love is expensive. Take control of your future. A plan from Merrill Lynch can show you how. And a Merrill Lynch financial consultant has more ways to make the plan work for you than anyone else. The difference is planning. The difference is Merrill Lynch. I want to tell you about my home far away, my mother, father. So, जैसा आपने देखा, बहुत सारे लाइफ के ऐसे गोल्स हैं हम वी कैन आइडेंटिफाई. आई एम श्योर द लैंग्वेज वाज नॉट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट यू कुड सी दैट द एम्फसिस वाज emotional goal setting, but when you start planning, then you need a very different hat on your head, which cannot be very emotional. Can I have the presentation, please? So all very emotional goals, but when you start planning, you have to set the emotion aside. तो जितना इमोशन है, जितना भी भावना है, जितना भावावेश है, वो सब गोल सेटिंग में करिए. Be as irrational as possible. Set the most difficult goal. But when it comes to developing a plan, that is when you have to put the emotion aside, and that is what you need. उस फिल्म में भी कहा, you need an advisor. Okay, Merrill Lynch is an advisor or was an advisor. Now it is not. The company doesn't exist. But you need all the help that you can find. एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने परिवेश में. बच्चों की महत्वाकांक्षाएं. पिछले साल भर में हम लोग अपने फ़ंड को लेके सारी भारतवर्ष में घूम रहे हैं, क्योंकि हमने एक निश्चय किया है कि हम हर कोने में जाएंगे. बहुत से बच्चों से मुलाकात हुई, कई 100 बच्चों से, सब स्कूल में पढ़ने वाले. देयर इज़ अ साइलेंट रेवोल्यूशन हैपनिंग अराउंड द कंट्री इन द माइंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. ये शायद आपके घर में भी हो रहा होगा. चिल्ड्रन do not want to pursue ordinary careers. They are looking at extraordinary goals. ये हम और आपसे बहुत आगे सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? They want to be Olympic wrestlers. They want to be boxers, rifle shooters, archers, gymnasts. They want to join IPL, कबड्डी लीग, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं. एक लड़की ने मुझे कहा पंजाब में कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनना चाहती हूँ. मैंने बोले क्यों सुप्रीम कोर्ट की जज? सुप्रीम कोर्ट की जज का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता है, और जो लड़कियों के साथ जितना नाइंसाफ़ होता है मैं उसको सबको ठीक करके रखूँगी. क्लियरली दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड दे वांट टू डू थिंग्स दैट वी नेवर वांटेड टू डू. माँ बाप ने बोला था कि भैया डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. आई वॉज अ रिबेल, आई जॉइंड एडवर्टाइजिंग. बट आज के ज़माने में दैट इज़ नॉट फार इनफ. Most of these children do not want to make a career that is limited to India. उनमें कोई दायरा है ही नहीं उनके एम्बिशन में. They want a global career. They want to be everywhere. भले इंडिया से हो. So there is something happening both in the minds of boys and girls. और I am telling you, this is going to take us by surprise. As planners, as advisors, as planners of money, we are not allowing for the fact that the next generation is on a completely different track than us. तो इसमें क्या जानते हैं हम इन व्यवसायों के बारे में? I certainly am very educated, I think, but I do not understand how you can be an Olympic wrestler. कहाँ, where will I start? Right? So we need to find data. We need to research.
वी नीड टू हेल्प, बिकॉज बच्चे हमारे पास ही आएंगे कि मैं क्या करूँ. दे लुक टू योर अस फॉर गाइडेंस. एंड वेन वी आर ट्राइंग टू टेल देम, we will find ourselves ill-equipped, and we will find for the first time we are in unknown territory, uncertain waters. गूगल में जाके इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो अच्छे हैं. दे आर बेटर देन अस फाइंडिंग द गूगल इन्फॉर्मेशन. इज दैट इनफ? इज देयर समवेयर आई कैन गो टू? आई कैन शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. माई सन वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन. आई डू नॉट नो हाउ टू गाइड हिम. ही इज ऑलरेडी देयर. ही इज एजुकेटेड हिमसेल्फ इन म्यूजिक. आई हैव नो आइडिया हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. मैं MBA हूँ, फाइनेंस में काम करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, बट दैट डज नॉट मेक मी एन एक्सपर्ट इन अ म्यूजिकल करियर. एंड ही वांट्स टू हैव अ ग्लोबल करियर. सबके बच्चे कहीं ना कहीं अलग जाके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. यहाँ भावुकता से काम नहीं चलेगा. वी नीड हार्ड नोज एडवाइजर्स एडवाइस. सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, किसे मालूम है? मुझे मालूम है कि अगर मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, इसका अंदाज़ है मुझे. लेकिन म्यूजिशियन बनाना है उसका अंदाज़ है ही नहीं मुझे. रेसलर बनाना है तो और भी मुश्किल है. सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू बी नॉट इमोशनल अबाउट द वे वी आर गोइंग टू गेट टू द गोल्स. वी नीड टू लुक इन टू आवर पर्सनैलिटी एंड से what is it that we want to become, what is it that our children want to become. We need to fix that goal and then go after it in developing a plan. इस plan के development में जरूर एक बहुत बड़ा भागीदार, बहुत बड़ा पार्टनर है आपका एडवाइज़र. Your financial advisor is your biggest asset in developing this plan. कोई नहीं है जिसे कि सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज लेवल पर फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना चाहिए. दैट इज़ रॉन्ग. You must get additional information, advice, and get people to bounce off your ideas. Even if you know enough. I am the CIO of my company. I do not put money in a single share without having a consultation with my team. अकेला मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ. So you have to have an advisor, however, whatever name called. When investing money to reach a goal, depending on numerical analysis, will always win. इसमें भावना का कोई की जगह ही नहीं है. Merciless approach. That which works for you, keep it. That which does not work for you, throw it out. Be mercenary. Hard data wins over soft data. What is soft data? आपने टीवी में सुन लिया, कोई CFO बता रहा था अपनी कंपनी के बारे में कि अगले साल हमारा इतना बिजनेस हो जाएगा. अरे बाबा, वो तो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो अगर उल्टा बोलेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. आपको क्या सुनना है वो सुनिए, जो वो कह रहा है वो कहेगा. सॉफ्ट डेटा इज़ ऑलवेज मार्केटिंग ऑफ हार्ड डेटा. हार्ड डेटा जो है वो एनुअल रिपोर्ट में रहता है, तब नॉइज़ नहीं होती है. आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसे ध्यान से पढ़िए. एंड आफ्टर एनी एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, new numbers are not available, do not touch that investment. Investing is numerical. इसमें ये नंबर गेम ही है. It is about probabilities. It is about probability of not losing money. जो लोग statistics या quantitative समझते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि if the probability of losing money is more than 0.5, you should not go there. वो probability 0.5 से नीचे ही होना चाहिए हर डिसीजन का. और इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और आपको आपके एडवाइज़र को ढूंढनी है वो इन्फॉर्मेशन. ये याद रखना ज़रूरी है जब आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के सिक्योरिटी में हो रहा है वो आप नहीं चलाते हैं, वो कोई दूसरा चलाता है. और जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकता है उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है. उसके अलावा इन्फॉर्मेशन से अपना माइंड शट कर दीजिए. जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस से आती है उस इन्फॉर्मेशन को देखना खास ज़रूरी है. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इज सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन. लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोगों की क्या अफवाह है, रूमर क्या है, जो दूसरे खरीदने वाले हैं क्या कह रहे हैं, दैट इज़ ऑल नाइस टू नो. समटाइम इट इज़ नॉट इवन नाइस टू नो. इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर कंपनी इज़ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसे ध्यान से पढ़िए, उसमें लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए. अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस एज टू वाई इट मेक्स प्रॉफिट्स और डज नॉट मेक प्रॉफिट, विच इज़ ऑल टोल्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. इस बात को अपनी गांठ बांध के रख लीजिए अपने दिमाग में. उसके बाहर कुछ है ही नहीं. जब इन्वेस्टमेंट करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही देखना है. लोग कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग. उसी तरह
अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये ज़रूरी है कि आप उस अकाउंटिंग को समझें। अगर आपकी समझ के बाहर है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाइए, जो तमाम सारे लोग हैं पीफा में, जो आपको समझाएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा क्या है, उसे पढ़ना कैसे है। ये ज़रूरी है। इसके बगैर यू आर इल इक्विप्ड। डोंट बी इमोशनल अबाउट द नंबर्स, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट इमोशनल अबाउट यू। हाउ टू इन्वेस्ट अनइमोशनली। किसी भी बिजनेस का आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, या कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, 3 क्वेश्चन जरूरी है पूछना। इज इट द राइट बिजनेस, इज इट द राइट वैल्यू, इज दिस द राइट टाइम। ये तीनों क्वेश्चन जरूरी हैं। बहुत लोग कहते होंगे कि टाइमिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर टाइमिंग आपका गलत होगा तो आप बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कंपनी में पैसा डाल के आप उसमें से लॉस लेके ही चले जाएंगे। ये याद रखिए। मेरे फ्रेंड ने अभी, महाजन जी ने बताया कैसे अगर आपका टाइमिंग सही होता मारुति में, यू वुड हैव बीन सिटिंग ऑन 7 to 8 or 9 times द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उस वक्त वो शेयर 7,000 का होता, यू वुड हैव बीन सिटिंग ऑन अ लॉस नाउ। सो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑलवेज टाइमिंग हैज़ टू बी लुक्ड एट। क्या मतलब है? निवेश में आम गलतियां लोग क्या करते हैं? मोस्ट बिजनेसेस वर्क टू द सेम मॉडल ऑफ सक्सेस। लोग ऐसा समझते हैं कि बिजनेस तो बिजनेस है, एक ही तरह चलता होगा। ये गलत है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। हर बिजनेस की एक अलग बिजनेस मॉडल होता है, उस मॉडल को समझना जरूरी है। या आई लाइक द प्रमोटर, कितना अच्छा आदमी है, कितना दयावान है, कितना चैरिटी करता है। बाद में पता चलता है कि वो लंदन में बैठ के दूसरी चैरिटी कर रहा है। लेकिन माई फ्रेंड्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इन्वेस्टमेंट। ये इतना ज़रूरी है इसके बारे में सोचना। माई फादर, ग्रैंडफादर हैव मेड मनी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे साथ ही हुआ है। एक कंपनी थी 2008 में, उसका स्टॉक प्राइस 3,000 रुपये में था। मेरे एक फ्रेंड, मेरे एक मित्र की पूरी फैमिली के सारे इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में थे 20 सालों से। तमाम पैसा बनाया था उन्होंने। मेरे पास आया और बोले ये लोग कह रहे हैं कि 5,000 हो जाएगा। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन निकाला। उनका जो मार्जिन था, उनके बिज़नेस का जो मार्जिन था, ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल कंपनी, उसके बिज़नेस का जो मार्जिन था, दैट मार्जिन वॉज एट 6 सिग्मा लेवल अबव द मीन। स्टैटिस्टिक्स जो लोग जानते हैं उसको जानते होंगे। इफ एनीथिंग रीचेज एट 6 सिग्मा, 6 times अबव द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द मीन, इट हैज़ टू रिवर्ट बैक टू मीन। ये सिंपल स्टैटिस्टिकल थ्योरी होती है। मतलब कोई भी स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट आपको बता देगा कि यही होता है। समथिंग दैट गोज अप बाय 6 सिग्मा हैज़ टू कम डाउन। उसका जो मार्जिन था वो 6 सिग्मा लेवल पे था। तो मैंने बोला यार मैं कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ इनका मार्जिन 6 सिग्मा हाई है, यहाँ से नीचे ही आएगा, यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, आप बेच दीजिए। फादर और सन में बहस हुई। फादर ने बहुत पैसा बनाया था, उसने बोला मैं नहीं बेचूंगा। लड़के ने सब बेच दिया। 2 साल बाद उस स्टॉक का प्राइस घट के 850 रुपये हो गया, क्योंकि 850 उसकी वैल्यूएशन थी। कोई गलत नहीं था, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत लॉस किया। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन गलत देखेंगे, गलत नज़रिए से देखेंगे, तो डिसीजन गलत ही होगा। यू हैव टू बी वैल्यूएशन ओरिएंटेड। क्या वैल्यूएशन सही है सिक्योरिटी की? कई लोग सोचते हैं ये सस्ता है तो सही होगा। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ब्रॉट अप टू बिलीव कि जो सस्ता है वही खरीदना चाहिए। लेकिन हर सस्ती चीज़ सही नहीं होती है। ललिता जी ने हमें बहुत पहले बताया था ना, सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ भी सस्ती हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। NFO म्यूचुअल फंड में इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो 10 रुपये में मिलता है। ये भी गलत धारणा है। वो 10 रुपये किस मार्केट में जा रहा है वो देखना ज़रूरी है। वो मार्केट महंगा है या मार्केट सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग्स इज़ द राइट वे टू वैल्यू एवरी कंपनी। इससे बड़ी गलतफहमी मैंने दुनिया में देखी ही नहीं है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ की सारा स्टॉक मार्केट PE की ही बात करता है, जबकि मेरे हिसाब से शायद गिनती की 20 कंपनीज होंगी इस कंट्री में जिनका वैल्यूएशन PE बेसिस पे किया जा सकता है। E का मतलब होता है अर्निंग और P का मतलब होता है प्राइस। जिस कंपनी की कम से कम 15-20 साल की अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग फोरकास्ट हम कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते हैं, उसमें PE कैलकुलेट करना बेजार है। वो करिए ही मत, बेकार है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कमोडिटी कंपनीज होती हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील है, हमको मालूम है उसका साइक्लिकल बिजनेस है, उसमें अर्निंग नीचे आने ही वाली है, तो फिर काहे का PE। सो एक फॉर्मूला सब कंपनी में चलता नहीं है वैल्यूएशन का। मेरे ग्रैंडफादर के पास स्टॉक था और इसलिए मुझे भी खरीदना चाहिए। इस बात पे एक कहानी याद आती है। एक गांव में
देयर वाज अ कैप मेकर, टोपी बनाता था, और उसका बिजनेस वही था, वो टोपियाँ बुनता था और गांव से जाके नज़दीक के शहर में थोड़ी दूर पे वहाँ जाके अपने मंथली बाज़ार में, हाट में जाके वो टोपियाँ बेच देता था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, तो एक दफ़ा वो टोपियाँ अपनी गठरी बांध के लेके गया और उसने रास्ते में रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ के टोपियाँ उसने रख दी, एक टोपी अपने सर पे बैठी लगा ली और सो गया। दूसरे दिन जब सुबह उठा, he found that all his caps are missing. Somebody had opened the bundle and taken away all the caps. So he said, yeah, in this jungle, who is there to steal? Then he was looking up, then he suddenly saw that all the trees in the jungle had monkeys and they were all wearing a cap. Then he said, they have taken the cap away because he was wearing a cap, they were wearing a cap. तो उसने बहुत दिमाग लड़ाया कि मैं कैप्स वापस कैसे मांगूं। बहुत सोचा, एक आइडिया आया उसको। वो थोड़ा बीच में क्लियरिंग में गया, उसने अपनी कैप निकाली और ज़मीन में पटक दी। श्योर इनफ ऑल द मंकीज टुक आउट द कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। उसने फटाफट अपनी कैप्स उठाई और चला गया। एंड ही पैटेड हिमसेल्फ ऑन द बैक कि मैंने आई डिड अ गुड थिंग। व्हेन ही केम बैक होम, ही हैड अ ग्रैंडसन। उसे बताया कि देखो ऐसा हुआ, मैंने ऐसे कैप निकाल के फेंकी एंड द मंकीज ऑल्सो थ्रू एंड आई सेव्ड द डे। बहुत ज़माना बीत गया। बहुत ज़माने के बाद the grandson also was a cap maker. He was also going one day with all his caps to the city. उसने भी कैप्स की गठरी रखी उसी पेड़ के नीचे, सो गया। दूसरे दिन उठा, कैप्स गायब। पहले तो बहुत उसे प्रॉब्लम हुआ, फिर सडनली याद आया, अरे मेरे दादाजी ने कहा था। ऊपर देखा, श्योर इनफ ऑल द मंकीज वर सिटिंग विद देयर कैप्स। उसने बोला इसका तो सोल्यूशन मेरे पास है। उसने अपनी कैप निकाली और ज़मीन में फेंक दी, कुछ नहीं हुआ। सिर खुजाने लगा। फिर थोड़ा आगे गया, उसने बोला शायद इन्होंने देखा नहीं होगा। फिर कैप पहनी, फिर उठा के फेंक दी। 3-4 बारी करने के बाद वो बैठ गया। बोला अभी क्या सोचने का। वन मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री, स्लैप्ड हिम हार्ड एंड ही सेड, यू थिंक ओनली यू हैड अ ग्रैंडफादर। सो दोस्तों, ये ग्रैंडफादर वाला फॉर्मूला स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। Because my grandfather owned a stock and I should own a stock, and because he made money, I will make money. The market shifts, other people learn. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो हो चुका है वही दोबारा करें। Timing is very important. I should have bought this investment long time ago. Making money is easy. तो एक मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ ICICI से, इन्होंने ही ये ऐड डाली थी। ये मुझे याद आ गया कि लोग कैसे खरीदते हैं। मार्केट ज़रा नीचे दिख रहा है, ये स्टॉक ज़रा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ज़रा मार्केट नीचे है, तो थोड़ी देर में ऑलरेडी ऊपर हो गया, अब कैसे खरीदूं। एकदम टॉप पे, अरे यार मैंने ही नहीं खरीदा होगा, बाकी सब ले लेंगे, चलो खरीद लेते हैं। फिर नीचे आया तो बोले, अरे वी विल डू डॉलर एवरेजिंग, रुपया एवरेजिंग, इसे और खरीद लेते हैं। एकदम नीचे आया तो बोले, अरे ये तो लॉस हो गया, निकल जाओ। दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ अस डू टाइमिंग। तो टाइमिंग का एक थिंकिंग होता है कि कैसे टाइमिंग करना चाहिए, मार्केट ऑप्टिमिज्म कैसे गेज करना चाहिए। एक छोटा सा चार्ट है हम लोगों ने बनाया है कि जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, जो कि टेलीकॉम या ट्रांसपोर्ट वगैरह की कंपनीज होती हैं, इफ़ पीपल स्टार्ट बाइंग दोज कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, इट मीन्स मार्केट इज़ पेसिमिस्टिक, बिकॉज उसमें रिटर्न लिमिटेड होती है। तो यू देन डिसाइड योर टाइमिंग। कॉमन मिस्टेक्स इन सिलेक्टिंग एसेट्स, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। इक्विटी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त आके आपको बताएंगे कि हाउ टू लुक एट इक्विटी इन्वेस्टिंग। लेकिन सीधी सी बात है, 1979 में सेंसेक्स 100 था, आज के ज़माने में 28,280 गुना है। बाकी कोई भी ऐसी एसेट या कोई भी आपका एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है जो कि इसके साथ पेस रख सके। महंगाई से फाइट करने का एक ये बहुत बेहतरीन तरीका है, बट यू नीड हेल्प, यू नीड एडवाइस एंड यू नीड फंड मैनेजर्स टू डू दिस राइट। गोल्ड, ये हमारा खास पैशन है एज इंडियंस। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। हाउस होल्ड लेवल गोल्ड होल्डिंग इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट, मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। हम दुनिया का 20% गोल्ड आज भी खरीदते हैं, एंड वी फाइंड एवरी जस्टिफिकेशन, एवरी रीज़न टू बाय। लेकिन इसमें क्या एक इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 40 साल का रिटर्न है 10%। एक सीधी सी बात गोल्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड क्या है? It is not an investment class, first of all.
इन्वेस्टमेंट क्लास वो होती है जिसमें एक इनकम होती है। लैंड में रेंट होता है, इक्विटी में डिविडेंड होता है, बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट होता है। गोल्ड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट क्लास। गोल्ड इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल मनी इन द वर्ल्ड। इट इज़ द हार्डेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है उसको डिमोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। दुनिया की कोई गवर्नमेंट उसको डिमोनेटाइज नहीं कर सकती है, बिकॉज फॉर मोर देन 3000 ईयर्स बाय एक्टिव ह्यूमन चॉइस इट इज़ अ करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पोर्टफोलियो में उतना गोल्ड होना चाहिए जितना कि आप करेंसी में रखना चाहते हैं, जो कि इरोड ना हो। दैट इज द पोजिशन ऑफ गोल्ड। इसको साफ साफ ठीक ठीक समझ लीजिए। फिक्स्ड इनकम, वी डिपेंड अपॉन इट एंड वी कीप बाइंग इट एज इफ दिस इज सेफ। लेकिन ये कितना सेफ है? ये है जो स्क्विगली ग्राफ है ना, वो रियल इंटरेस्ट रेट है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट आप अर्न करते हैं उसमें से इन्फ्लेशन निकाल दीजिए तो जो बाकी बचा, यानी 2006 से और लगभग 2013-14 तक ये नेगेटिव ही था। आपने कहीं भी किसी भी बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम में डाला हो तो ये याद रख के चलिए कि जहाँ बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम में इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है वो आपके पैसे को खाता जा रहा है। इट इज़ eroding योर वैल्यू। इट pays टू बी न्यूमेरिकल। It is not about guesswork, it is about taking hard decisions and it is about reaching specific goals. इसके साथ साथ दोस्तों शुभकामनाएं। मैं समझूंगा कि अगर मैं कुछ भी आपके एफर्ट में डिफरेंस कर सका, it is my privilege, and again thank you very much for listening to me patiently. Thank you. थँक्यू आशुतोषजी. अँड जर पुणेरी भाषेत मला त्यांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची असेल तर भावना पोचल्या, भावनाबद्दलच ते बोलले होते. आणि जसं म्हणतात की फीलिंग्ज आर लाईक वेव्ज, यू कॅनॉट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग बट यू कॅन डिसाईड विच वन टू सर्फ अपॉन. सो थिंक अबाउट इट. I would now like to request PIFA past president, Mr. Praveen Chhajed, to the dais, and he has quite a few people to thank for arranging this mega event. So, Mr. Praveen Chhajed. Good evening, friends. Respected guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. I, Praveen Chhajed, past president of PIFA, on behalf of PIFA, Pune Independent Financial Advisors Association, and on my behalf, extend my very hearty vote of thanks to today's speakers for giving your important time and sharing your knowledge and views on the subject with us. A big thank you to Mr. Ashutosh Bishnoi for demonstrating his expertise in the explaining benefits, otherwise complicated subject of the mutual fund investments. I am sure after his presentation, all must have understood the role of emotions in the mutual fund investments. Further, we are grateful to Mr. Hitesh Mali for giving his time out of his 24/7/365 tight scheduled, who travels throughout the country to enlighten the investors through his presentations in most simplified way. I don't need to say much about that, as you yourself will be experiencing it immediately now. I will not forgive myself if I don't mention that and thank our sponsors, AMCs, that is Platinum sponsors, HDFC, Mahindra, Motilal Oswal, Sundaram Mutual Funds. Diamond sponsors, Axis, Birla, ICICI Prudential, Mirai Asset Mutual Funds. Gold sponsor, DHFL Pramerica, Canara Robeco and Reliance Mutual Funds. Silver sponsors, Kotak, SBI, Invesco and Tata Mutual Funds. Without their support, we could have not achieved what we have today. Respected speakers, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye view for the details. We have been fortunate to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of PIFA core team and supported by the volunteers. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on this completion
of tasks beyond their comfort zones. As you all know, this event is being telecast and watched throughout the world. I thank you all the viewers in different cities of India and the world at large. Last but not least, I thank you each and everyone in audience personally. Without your presence, all our efforts have been null and void. I also thank principal and staff of the Garware College, webinar technicians, our publicity partners, and all other suppliers and service providers for their hard work and timely support. Thank you very much.